Over to you, Dr. Atul. यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। Yes, you are audible. So first of all, I wish all the participants, judges, and audience a very happy Independence Day. I welcome you all to this speech competition being jointly organized by Government PG College Shahjahanpur, Government PG College Bajpur, SS College Shahjahanpur, and Society for Research in Biological Science. I welcome Dr. Madhumita Bhattacharya, Associate Professor, Department of Botany, Post-Graduate Government College for Girls, Chandigarh, and Dr. Amit Vash, Assistant Professor, Department of Botany, Hindu College, Muradabad, UP. And I also welcome all the participants from more than 10 states. We have 28 participants, which we have finalized who will speak, and these belong to 10 different states. So we have a great gathering here. Welcome you all, and all the best. Thank you. Now I would like to call upon Dr. Ramesh Chandraji, our co-coordinator, to conduct the competition. Thank you. थैंक यू प्रति सर। आज के इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 74वें गणतंत्र दिवस को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक कुछ नए अंदाज में जो टीम ने सोचा कि एक स्पीच कंपटीशन कराया जाएगा, तो JDGC बाजपुर और SSPG कॉलेज शाहजहांपुर के जॉइंटली कोलैबोरेशन में हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। और विद ड्यू परमिशन ऑफ आवर चेयर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो उनका नाम है प्रतिभा, जो कि GPGC बाजपुर से हैं। अगर प्रतिभा क्या मेरी आवाज को सुन रही है तो प्लीज लेट स्टार्ट योर स्पीच नाउ। Yes, sir. Sir, I am audible. Yes, you Yeah, are yeah, audible. you are And the time is 11:33. Now start, please. Yes, sir. Happy Independence, everyone. Good morning, respected jury, organizing member, and teachers, and my fellow mates. This is me, Pratibha, student of Government PG College, Bajpur, going to present a speech on the topic Online Education, Present and Future. Technology has become an integral part of our education system with the introduction of new age digital platform in this PG to Your voice is cracking. Voice is not coming. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is not coming, beta. It's cracking. The ability and various government initiatives taking in as turned on Indian education market. Making the country There is audio problem, Ramesh sir. We are not getting her voice. प्रतिभा बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Yes. आपका नेटवर्क मेरे ख्याल से शायद जो है कनेक्टिविटी अपनी चेक कर लो प्रतिभा एक बार। अगर सिग्नल्स कम आ रहे हो तो देखो आप कुछ ऐसी जगह। सर सिग्नल्स तो यहाँ से प्रॉपर है। हाँ नाउ बिल्कुल से अब इस समय आवाज सही आ रही है आपकी। It's better now. अब थोड़ा It's better. सही आ You रही can है। continue. हाँ You can continue, beta. वीडियो ऑफ कर दो ताकि डेटा और आपका थोड़ा सा सेव हो जाए। Yes, sir. Now it's better, beta. You can start. Yes, ma'am. बोलो। The COVID has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of classroom. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. Research suggests that online learning has shown to increase retention of information. Thousands of people turn to online education to complete their education, to rise to the high level in their jobs, and then to qualify courses and to improve the education level. It is highly important to say that learning is no longer confined within the four walls of classroom. The instructor armed with the textbook is no longer
the sole source of educational experiences. It is also known that the information resources are everywhere, often separated from the learner with these remote resources. No one can deny that the learning is a lifelong pursuit where training and retraining become the strategies for both individual and corporate success. It is noted that there are variety of online education solution for every educational need. It is thought that some people agree that online education has come a long way and opened a new vistas in the field of education. Some researchers are still questioning the value of learning through non-traditional means. Whatever is the case, there are various opinions to consider and they all are true in their own right way. Online education market in India was worth US $247 million in 2016, which is expected to grow about US $1.96 billion in 2021. That is a compound annual growth rate of 52%. It is estimated that there are 175% in cost of classroom education. This gives online education more preferred because it is cost effective. 48% population in India between 15 to 40 age group with high aspiration but lower income is a good target market in online education. Besides having merits and advantages, there are some demerits of online education which we can't neglect. Here are some. Online student feedback is limited. E-learning can cause social isolation. E-learning requires self-motivation and time management skills. Lack of communication skill development in online education. Online structure tends to focus on the theory rather than practice. E-learning is limited to certain disciplines, lack of quality assurance in online education. Online education in India has become a long way with the development of technology. India is one of the nations that is developing at an exponential rate in terms of technology. With the population of more than 1.3 billion, the availability of high internet and smartphones, India has the most members of technologically driven persons. The rise of the internet has changed the way of life in India. People like to do everything online. They shop online, they do business online, make friends online, learn online. While e-commerce being the most significant online industry, online education and learning stand right next to it. With the ever increasing of information available on online courses, many people in India prefer to learn online. By seeing the potential and immense popularity of Digital India, our Honorable Prime Minister has envisioned transforming our nation and creating opportunities for all the citizens by harnessing digital technology through Digital India and initiative. Thank you. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अवंतिका फ्रॉम आर्य महिला डिग्री कॉलेज. अवंतिका. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. शुभ प्रातः. मेरा नाम अवंतिका है तथा मैं शिरापुर की निवासी हूँ. मैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में अपने विचार समर्थ आपके प्रस्तुत सामने रखना चाहूंगी. कृपया आज्ञा दें. ऑनलाइन एजुकेशन एक समय वो था जब गुरुकुल और पाठशाला में शिक्षक लोग बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे. आज समय वो है कि आधुनिक से भरपूर आज नए नए विषयों के बारे में रोज रोज नई खोज होती हैं. जो समय की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज वो समय आ गया है. इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 जिससे महामारी फैली हुई है, कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई पे पाबंदी लग जाएगी. कारोबार पे तो लग जाती थी. आज के दौर में और आज के समय में पढ़ाई पे भी पाबंदी लग गई है. ऑनलाइन के सहारे हर एक छात्र छात्रा को अपनी शिक्षा पूरी कर रही है और जारी रखे हुए है. जिज्ञासा छात्रा को शिक्षा प्राप्त करने की एक नया अवसर दिया गया है. ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से देश के किसी भी कोने में बच्चों को पढ़ा सकते हैं. इससे शिक्षक को विद्यार्थी अपने सुविधा के अनुसार वक्त का चुनाव कर ऑनलाइन जुड़ जाता है. शिक्षक स्काइप, व्हाट्सएप, जूम वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं. आज कोविड-19 के लॉकडाउन के वर्ष में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उसमें सर्वप्रथम है बच्चों की पढ़ाई. ऑनलाइन यानी दूर की शिक्षा ने लॉकडाउन चल रही है, इस मुश्किल को आसान कर दिया है.
अब विद्यालय के निर्देशकों अनुसार शिक्षक बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि शिक्षक में कोई भी रुकावट ना आए, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जहां छात्र विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग कर शिक्षक को आसान बना देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से फायदे, शिक्षक के साथ अधिक नियम संपर्क, जैसे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन छात्र स्काइप, अपेयरिंग और गूगल क्लासरूम माध्यम से अपने शिक्षक के संपर्क में आते हैं। छात्र अक्सर अपने फोन से ही शिक्षकों से हर समय संपर्क अभ्यास कर लेते हैं। बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन ट्यूशन के साथ अंतिम मिनटों के समय में परिवर्तन आ सकता है। छात्र जब चाहे तब क्लास रख सकता है और रुका भी सकता है। इसमें यात्रा नहीं करनी पड़ती है, समय काफी बच जाता है। उपयोग करके विषय को समझना आसान हो गया है। किसी भी समय पर शिक्षा करना, किसी भी स्थान पर या कोई भी समय पर पाठ को पढ़ाया जा सकता है। आपको सिर्फ केवल कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन शिक्षा से नुकसान, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन करने से कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन को ऑफलाइन ट्यूशन के मुकाबले में कम समय शिक्षा प्रदान करते हैं। सिर्फ एक तरफा टीचर बच्चों पे ध्यान दे पाता है, उसमें बच्चा ज्यादा समय नहीं पढ़ पाता, क्लास वर्क भी नहीं कर पाता है। ऑफलाइन शिक्षक में नैतिक शिक्षा का प्रदान नहीं कर पाता है, जबकि ऑनलाइन शिक्षण में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक से छात्रों को ना समझ पाना, सामान्यतः एक शिक्षा कक्षा में आपको सीधे तरीके से समझा सकता है। कक्षा में आपकी बोलचाल, आपके प्रतिक्रिया देखकर समझ सकता है कि आपका विषय कितना समझ पा रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, आपको आधार पे उनको समझाया जा सकता है। दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। अनुशासन की कमी, स्कूल में छात्र हमेशा अनुशासन का पालन करता है और इसके निर्धारित समय अपना कक्षा कार्य पूरा करता है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में निश्चित अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा सभी तरह के पहलू हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों को शिक्षकों और शिक्षा संगठनों की काफी मदद की है और शिक्षा के आदान प्रदान के रुकने नहीं दिया है। वैज्ञानिक ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम घर बैठे दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अवंतिका, आपका समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो गया आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं रीता मालविया, जीजीपीजी कॉलेज उज्जैन एमपी से। रीता मालविया प्लीज। रीता मालविया क्या अवेलेबल है? मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। रीता मालविया अगर मौजूद हो तो आप बताएं, नहीं तो आप आगे नाम बढ़ाइए। रमेश सर आप आगे बढ़िए। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं गरलापति अनुषा, सी इज फ्रॉम एससी वुमेन डिग्री कॉलेज तेलंगाना। गरलापति अनुषा, आर यू देयर? I again repeat, Garlapati Anusha, she is there or not? Okay, I think she is not there. Next one is Kritika Avasthi, SS College Shahjahanpur. Kritika Avasthi. कृतिका आप हैं? जी सर। Yes, please continue. It's your turn, Kritika. Please go ahead. A very warm welcome to the jury members, the organizers, and my dear friends. Today, myself, Kritika Avasthi of SSPG College, is going to present a speech on the topic online education, present and future. ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षक और छात्र दूर से अथवा दुनिया के किसी भी कोने से
एक दूसरे से जुड़कर शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों जैसे गूगल मीट, जूम, स्काइप एक्सेट्रा से भी यूज करके हम ऑनलाइन शिक्षा को सर्वसुलभ बना सकते हैं। पिछले कई सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा की प्रबल आवश्यकता है और संभावनाएं भी हैं। भारत में ऑनलाइन शिक्षा अभी शुरुआती चरण में है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार 186 देशों के 1 बिलियन से ज्यादा छात्र कोविड-19 के प्रभाव की वजह से क्लासरूम एजुकेशन से दूर हो गए और कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए शिक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। इसलिए आज के युग में ऑनलाइन शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो स्वयं एक ऐसा संस्थान है जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए करिकुलम प्रदान कराता है, जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इनके करिकुलम से प्रभावित हो रहे हैं। और जो भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 3 करोड़ से ज्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका लाभ 50 लाख से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। ऐसे ही यूजीसी, एनसीईआरटी, इग्नू, NIOS, मेरिट नेशन, ऐसे कितने ही ऑनलाइन शिक्षण के नए नए इनिशिएटिव्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को नया आयाम दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के क्रियान्वयन में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सर्वप्रथम शिक्षण संस्थानों में अभी तक इसका कोई अनुभव नहीं था। अब अप्रशिक्षित शिक्षक, अभी तक जो शिक्षक ऑफलाइन पढ़ाते आए हैं वो एकदम से ऑनलाइन कैसे पढ़ा लेंगे। फिर अभी एक निश्चित सीमा में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो लैपटॉप या टैबलेट यूज करते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। कुछ वन क्षेत्र या सुदूर क्षेत्रों में तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास अभी संचार माध्यमों और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। तो वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में सोचना भी एक स्वप्न जैसा लगता है। अभी भी 20% जनसंख्या भारत की विद्युत जैसी सुविधाओं से दूर है, यानी कि 31 मिलियन जो पीपल हैं वो भारत में वो ऑनलाइन उसके विद्युत से दूर है। और यूपी में ही 13 मिलियन पीपल तो यूपी में है जिनके पास विद्युत जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। अब ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो बिल्कुल किसी यूज की नहीं है, ऐसे बहुत उसके यूजेस भी हैं, जैसे कि वो 24/7 अवेलेबल है। हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। हम लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे दोबारा भी देख सकते हैं। अगर हमें कुछ अनक्लियर है तो हम टीचर से दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एक मेन फायदा ये भी है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम कितना भी कि ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन में हम पेपर ना यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें क्योंकि पेपरलेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इस वजह से हम बहुत ही बेनिफिट में रहते हैं कि पेपर यूज कम यूज होता है, तो इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और जो बच्चे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जिनके लिए रोज आना जाना पॉसिबल नहीं है, वो भी काफी आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन से अपना टाइम लेस कंज्यूम करके अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन जो उन बच्चों के लिए ज्यादा कारगर है जो या तो कोई काम कर रहे हैं या जो लोग घर संभालते हैं, वो अपने सुविधा अनुसार कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और जो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, उनके लिए अच्छा होगा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन फ्री कर दी जाए या उनके लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स बनाए जाए जिससे कि वो आसानी से अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर पाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि चाहे ऑनलाइन एजुकेशन कितनी भी जी सर ऑनलाइन एजुकेशन कितनी भी कारगर क्यों ना हो जाए, लेकिन जो शिक्षक और छात्र का आमने सामने बैठ के संवाद होता है वो ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी पूरी नहीं कर सकती है। मैं बस ये कहना और अंत में बस 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करती हूँ। सदा ज्ञान के पृष्ठ काले मिलेंगे, जहन में मकड़ियों के जाले मिलेंगे, भटकते रहेंगे अंधेरे में, हर पल गुरु के बिना ना उजाले मिलेंगे। धन्यवाद। गुड। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है पुष्पेंदु चक्रवर्ती, होली क्रॉस कॉलेज, अगरतला, त्रिपुरा। मिस्टर पुष्पेंदु चक्रवर्ती, आर यू हियर? Yes, sir. My camera is not working properly today, sir. So can I continue? Okay. Don't worry. Okay. You please continue. You can Okay, speak sir. without camera. Thank No you, sir. problem. Okay, sir.
Respected sirs and madams, audiences, and all the participants present in this meeting. At first, I want to wish all happy 74th Independence Day. I am Pushpendra Chakravarti, student of Holy Cross College, Agartala, Tripura. And I want to thank all the organizers of this competition for giving me an opportunity to participate in this competition. Without extending my words, let's go to the basic topic. Now, online education present and future. What is online education system? Online education system is a flexible instructional delivery system that encompasses any kind of learning that takes place via the internet. The quantity of distance learning and online degrees in most disciplines is large and increasing rapidly. We know that online learning is on the rise. A recent poll found that 46% of the recent graduates took an online credit as a part of their degree, while more people than ever are turning to hybrid courses that combine distance learning with traditional classroom methods. Many students are attracted to the flexibility of online learning and combine their studies with work or personal commitments. For others, distance learning is a less expensive alternative to traditional campus-based courses. A 3-year undergraduate degree can cost up to $50,000, while postgraduate courses will set a student back around $5,000. And although prices for online learning course vary quite dramatically, comparable degrees cost around 50% less. Now, what are the benefits of online learning? Online learning is about accessibility and inclusivity. It removes the physical barriers that prevent many people from fulfilling the academic or career ambitions by allowing students to work from pretty much anywhere. Moreover, online learning can ensure all the children receive a first-class education. Now, what is the future of online learning? For many universities, providing online courses and hybrid learning will play an essential role in their long-term survival. Many students are put off by expensive course fees associated with the full-time campus-based courses. For others, studying full-time clashes with other important responsibilities such as a current career or raising a young family. Subsequently, universities that offer online learning resources are encouraging more students to enroll in their institutions, including those who live in provincial areas or in some cases in a completely different country. Keeping up with the environment, students, theirs is also human recognition, and usually from senior university staff. When a student passes an assignment, they receive congratulations and a thank you from real life humanity via Skype. Now, what are the drawbacks of the online learning? Drawbacks of online learning are online student feedback is limited. E-learning can cause social isolation. E-learning requires strong self-motivation and time management skills, lack of communicational skill development in online students. In fact, cheating prevention during online assessments is complicated. Online instructors tend to focus on theory rather than practice. Online learning is inaccessible to the computer illiterate population. The nationwide COVID-19 lockdown has forced schools and universities to close and send their students home, which in turn has impacted over 91% of the world's student population. The closure has placed unprecedented challenges on governments, institutions, teachers, parents, and caregivers around the world. India is going to witness a 50% increase in students over the next 15 years, and although it has many universities and colleges, only a few have the facilities to match the surge of students in the future. Online education could be a logical solution to accommodate this problem. The government of India for the first time is allowing Indian universities to offer online degrees, which previously was limited to foreign universities. Now, to encourage and widen the access to higher education, this restriction has been lifted from 20% to offer 100% courses online. The sudden forced immersion of learners into virtual learning during this period of COVID-19 has proved that the education industry is disrupted. Education is going to be digital in the foreseeable future, and with the right infrastructure and policies in place, we would be better prepared to handle it. Thank you, sir. Thank you. Next participant is Shivaji Rathore, GDC Kiswar, J&K. Yes, sir. Shivaji Rathore. Yes, please. मेरी आवाज yes, आ रही है? Yes, please. Yes, please. नमस्कार, मैं शिवाजी राठौर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर। समय के साथ साथ हर एक चीज में बदलाव लाना पड़ता है। आज बढ़ती तकनीक हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। इससे शिक्षा के तरीके भी काफी हद तक बदले हैं। जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग बढ़ रही है, लोगों को पूरी और आसान सुविधा मिल रही है, वो भी घर बैठे बैठे
लोग इस सुविधा के लिए ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। भारत में इन नई तरीकों को काफी हद तक स्वीकार किया जा रहा है। आज ऑनलाइन एजुकेशन छात्रों के लिए सस्ती और समय के हिसाब से भी काफी प्रबंध के हिसाब से भी काफी बेहतर है। इसमें आपको बता दूं कि छात्र अपने घर से ही समय सुविधा के हिसाब से सीख सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा कामकाजी पेशावर लोगों में अधिक लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि उनके पास रेगुलर पढ़ाई के लिए समय नहीं होता। इसलिए वो अपने हिसाब से समय निकालकर अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे हैं। टीचर्स की कमी को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं, अब ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से टीचर्स की भी कमी महसूस नहीं होगी। जिस प्रकार से हमारी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में हमें स्कूल और कॉलेजेस की कमी काफी महसूस होने वाली है। ऐसे में अगर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो ये काफी बेहतर साबित होगी। अभी कोरोना वायरस की जिस प्रकार की सिचुएशन है और इस वजह से काफी स्थिति बिगड़ी हुई है, हम 5 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन की सिचुएशन में जी रहे हैं। ऐसे में इसकी वजह से सभी क्षेत्रों पर, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शिक्षा क्षेत्र पे पड़ा है। ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपना कार्य शुरू तो किया है, पर ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स टीचर और स्टूडेंट के पास होने चाहिए थे वो नहीं है। हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे। जो हमारे गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपको हिमाचल प्रदेश के एक विलेज की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए अपनी गाय तक बेच देनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। इसके अलावा अभी भी हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं और हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच ही नहीं पाई है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पिछले साल आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से अभी तक भी यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये भी एक बाधा आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने में। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के नजरिए से काफी फायदेमंद है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी की पहली महत्वपूर्णता है तो है हमारे शिक्षा व्यवस्था की। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की अधिक से भी ज्यादा जरूरत है। समय के साथ साथ सोच समझकर बदलाव लाने से ही हम प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक तरीके वाली शिक्षा प्रणाली से बेहतर है और मैं ये समझता हूं कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू शिवाजी राठौर। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं कोमल शर्मा, हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर पंजाब। रमेश सर। जी सर। जी सर। जी सर। ये हमारे बीच में जोधपुर से अशोक पांचाल हैं। जी 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 जी। उनको कुछ अर्जेंट कहीं जाना है, तो उनका मैसेज आया था कि अगर सर आप मुझसे बुलवा लें तो एक बार उन्हें आवाज दे दीजिए। 11 नंबर पे हैं वो। जजेस भी कृपया ध्यान दें। 11 नंबर पे है अशोक पांचाल, JN व्यास यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस जोधपुर से हैं। क्या अशोक पांचाल सुन रहे हैं मुझे? मिस्टर अशोक पांचाल। अशोक पांचाल, आई थिंक अगर आप मौजूद हैं, अभी आप मैसेज कर रहे थे लगातार मुझे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी स्पीच। अशोक पांचाल प्लीज। यस यस, स्टार्ट करें प्लीज अशोक पांचाल जी। आप अपनी स्पीच स्टार्ट करें प्लीज।
अरे भाई मिस्टर कोई अशोक मीटिंग पांचाल। कोड नहीं है, लिंक दिया है, लिंक से ही ज्वाइन करिए। ये लोग मीटिंग कोड क्यों मांग रहे हैं? कहाँ मीटिंग कोड की बात हुई भाई? देयर इज नो मीटिंग कोड एट ऑल। मीटिंग ग्रुप कोड में नहीं है, जो लिंक आपको दिया गया है, शेयर जो कर भी दिया ज्वाइन गया करना है, चाहता है इस लिंक होना पे उसी क्लिक से हो रहा करेगा। है। देयर इज नो मीटिंग कोड। अशोक पांचाल, आपकी आवाज नहीं आ मिस्टर रही। पांचाल, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो। अशोक पांचाल यस। जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। जी बोलिए। सभी टीचर्स स्टूडेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक पंचाल जैन विश्वविद्यालय Mr. Ashok, your voice is cracking too much. यस मैम। Your voice is cracking. यस मैम। मैं You अशोक change. पंचाल जैन। हाँ बोलिए 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 मिस्टर पांचाल, बोलिए हाँ. प्लीज। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। मैं अशोक पंचाल जैन आपके बीच में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बारे में अपनी बात रखता हूँ। सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नहीं। हाँ सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। आपने अगर टीवी ऑन कर रखा है उसको बंद कर दीजिए। आसपास कोई शोर है उसको हटा दीजिए वहां से, या अलग रूम में जाइए। ओके सर। आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिलाएंगे। तो क्या ये व्यवस्था बन जाए रहेगा तो ठीक है। वर्तमान में वैश्विक महामारी बात करें तो इसको मध्य रखते हैं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना एक बेहतर उपाय हो सकता है। इस समय के कारण बच्चे घर पर बैठकर बोर ना हो जाए और शिक्षा का आनंद ग्रहण कर लेते, ये ठीक है। इसके कारण किसी प्रकार से अपने जीवन में अपने आदर्श को देर न पाएंगे। वर्तमान समय के अनुसार ऑनलाइन से शिक्षा प्राप्त करने का जो तरीका हम कहीं न कहीं सही ठहरा सकते हैं। ये सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के बेहतर कदम या बेहतर उपाय भी कह सकते हैं। पर क्या हमेशा के लिए ऑनलाइन से ही शिक्षा प्राप्त करना एकमात्र साधन बन जाए? अगर हाँ तो क्या ये ठीक रहेगा? मेरी नज़र से अगर मैं कहूँ तो शायद ये ठीक ना रहे, क्योंकि मेरे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ना सीख जाएंगे पर वो संस्कार में भूलते जाएंगे, अपना तो ना रहेगा। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की मित्रता करना, गुरु को आदर करना, जो संस्था के धरातल पर जाकर ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन शिक्षा कोई मायना रखते हैं तो घर पर रहकर इन संस्कारों को अभिनिवेश किया जाएगा। समय पर संस्था में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना, वरिष्ठ जनों की सलाह लेना, ये तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। इन सबको इच्छा होगा ये पार्ट 1 में शायद धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर चले आएंगे। इसलिए मैं मेरे आखिरी शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जब इन वैश्विक बीमारी से देश और दुनिया को छुटकारा मिल जाए तो नहीं इसी प्रकार से विद्यालयों और महाविद्यालयों की धरातली शिक्षा का आयोजन हो, ताकि बच्चे विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। बहुत ही सस्ता प्रचार ऑनलाइन की व्यवस्था हमेशा के लिए ना करें तो हो सके तो ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मेरा मतलब ऑनलाइन पढ़ाई या वो सब कोई जब कोई विद्यार्थी छुट्टियों पर घर पे रहें, बाकी समय संस्था के साथ जाकर ऑफलाइन तैयारी करें तो उससे बेहतर होगा, ताकि बच्चों पर होने वाले बुरे प्रभाव से बच सके। उसके अंदर जोश और ऊर्जा बेहतर रहे, ताकि हमारे बच्चों और भी नकारात्मक प्रभाव जो भी पढ़ रहे हैं उनकी मन में उसको भी पक्षे नहीं इस प्रकार तनाव स्थिति नहीं करेंगे। अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसा ऑनलाइन शिक्षा का जो दौर चल रहा है यह समर्थन जरूर करें और ऑफलाइन को जोर दिया जाए। अपना देश प्रगति कर रहा है और डिजिटल क्रांति के तहत ऑनलाइन शिक्षा के बदलाव में भी बदलाव कर रहा है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन शिक्षा में बेहतर प्रदान कर रहे हैं और समय में सुंदर भविष्य बना रहे हैं। विद्यालय विश्वविद्यालय आदि में बच्चे जाकर ज्ञान प्राप्त कर बेहतर होता है और पर ऑनलाइन स्टडी करें तो ये सही है। हमारे आने वाले भविष्य ये है कि हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरूरी है। आज अमेरिका, जापान, रूस और ब्रिटेन की बात जैसे देश तरक्की कर रही, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा इससे आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सर।
नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कोमल शर्मा, महिला महाविद्यालय जालंधर। कोमल शर्मा, बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लें। प्लीज अपने माइक को अपना माइक म्यूट करें। यस, कोमल शर्मा प्लीज। कोमल शर्मा प्लीज। कोमल शर्मा आप स्टार्ट करें प्लीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी आवाज नहीं आ रही कोमल शर्मा। अगर किसी के साथ नेटवर्क का इशू हो तो कृपया करके अपना वीडियो ऑफ कर लें। कोमल शर्मा, अगर आपके साथ नेटवर्क का इशू है तो पहले अपना वीडियो ऑफ कर लें, केवल ऑडियो से भी आप बात कर सकते हैं। इनकी आवाज आ ही नहीं रही है सर। ये वीडियो का नहीं है इनका आवाज। मेरे ख्याल से माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है ठीक से इनका। कोमल शर्मा, आप एक बार मीटिंग को एग्जिट करके दोबारा से एंटर करिए प्लीज। जी जी जी। अभी सुन रही है सर? हाँ, अब आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, sir. In times when small instructor-led classrooms tend to be the exception, electronic learning solutions can offer more collaboration and interaction with the experts and peers, as well as a higher success rate than the live alternative. With this thought, I, Komal Sharma, a student of MSc Botany in Hansraj Mahila Mahavidyalaya, welcome you all in this online competition. Now, I would like to portray my views on the topic online education, present and future. Gone are the days when learning was just limited to traditional learning methods. Online education is an emerging methodology of modern education. It is generally growing very fast for the last 2 decades in the education sector. The growth of online education is evident in the numbers now. For instance, in 2016, over 6 million students took an online course, and over 30% of students did entire online degree programs. As the internet has continued to grow and boom, so have the options for online learning as well. Also, when each of us is able to stay safe and protected in the pandemic time, all universities, schools, and companies have made a turn towards online platforms and started providing online courses. वीडियो ऑफ करना पड़ता है, आवाज साफ नहीं आ रही थी। In order to satisfy the student needs and to improve employer effectiveness. Also, e-learning can deliver more values at very less cost than any other traditional mode of education. Interestingly, online education is fostering changes in how students learn as well. Things like competency-based education take online learning to a new level, allowing students to move through material at a pace that works for them and their schedule. Instead of sitting down at certain times to listen to lectures, now students have the control and freedom to work on their studies in the best possible way. This caters to all kinds of learning adjustment that is made. Thus, online education in the following scenario is able to empower students to get degrees, pursue their career jobs, and leading to what the future of online education is. मोन्टू चौहान, अपना माइक म्यूट करें प्लीज। मोन्टू चौहान, अपना माइक म्यूट करें प्लीज। The e-learning is expected to enter into a world of exciting visuals. It would be practical and cost-effective for both the learner as well as for the educational institutes. Technology will continue to advance, giving online education more options for helping with hands-on learning, more game-based options of learning, and easier communication within an online education setting. It is also expected that online education of the future will continue to grow, with even more students wanting an online degree versus the traditional one. This is very interesting as well. As online degrees continue to gain respect and credibility, more students will turn to that option. This will allow them to connect with the people around the world as part of their learning, utilize technology, and empower themselves to become self-motivated learners. Finally, I believe that online education is here to stay. With the proliferation of information and knowledge, students must become lifelong learners in today's world, and online education plays an important role in that. Therefore, it can be concluded that online learning is rapidly becoming one of the most cost-effective ways to educate the world's rapidly expanding workforce, especially during the online pandemic times. In the end, I would like to say that students of the future will demand the learning support that is appropriate for the situation or context. Nothing more, nothing less. And they want it at the moment the need arises. Not sooner, not later. Online education will be a key technology to providing that learning support. Thank you, everyone. Thank you, Komal. The next participant is Manish Kumar Khairol. Manish Kumar. Yes, sir.
हाँ प्लीज। महान भारत भूमि के 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की निर्वाण स्थली महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का छात्र मनीष कुमार, मैं आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन के वर्तमान व भविष्य पर संक्षिप्त में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। वर्तमान विश्वव्यापी कोरोना महामारी के मोन्टू समय चौहान, में आपका माइक बार बार स्टूडेंट्स के लिए अनम्यूट कर रहे हैं अध्ययन आप, को प्लीज। निरंतर बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। इस संक्रामक महामारी के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे समय में स्टूडेंट्स के अध्ययन को निरंतरता प्रदान करने में ऑनलाइन एजुकेशन मददगार साबित हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन ने शिक्षण कार्य को सरल कर दिया है। यातायात सुविधा से वंचित स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स या उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूं जिनके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, या फिर वे स्टूडेंट्स जो आर्थिक कमी के कारण बड़े शहर में जाकर अपना आगे का अध्ययन नहीं कर पाते, उन सभी के लिए ऑनलाइन एजुकेशन अपनी स्टडी को सुचारू करने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वर्तमान समय में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में अंश मात्र भी दोष निकालना निरर्थक है। अगर बात करें हम इसके भविष्य की, यदि हम भविष्य की बात करें तो आगामी निकट भविष्य में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स की पीठ पर बढ़ते किताबी बोझ को कम करने में ऑनलाइन एजुकेशन काफी मददगार साबित होगा। मजाकिया तौर पर हम ऑनलाइन एजुकेशन को इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि कागज की जरूरत को ये बहुत कम कर देगा। पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो स्टूडेंट्स गाड़ियां ले लेकर दौड़ते फिरते हैं इधर उधर, वो चीज भी कम हो जाएगी। इसके कुछ बड़े दुष्परिणाम भी स्टूडेंट्स के भविष्य में दृष्टिगत होंगे, जैसे कि आंखों से संबंधित बीमारियां, मानसिक असंतुलनता जो छात्रों में बढ़ेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान एजुकेटर को अपने स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज पर ध्यान रख पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स एकाग्रता से रहित, शिष्टाचारों से रहित, अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और व्यवहारिक ज्ञान देना संभव नहीं होता है। यदि हम सीखने की कोशिश करें प्राचीन समय की शिक्षण प्रणाली से, तो प्राचीन समय में अभिभावक अपने संतान को शिक्षित करने के लिए आवासीय बस्तियों से दूर वन में किसी गुरु के आश्रम छोड़ आते थे। फिर वहीं से प्राथमिक शिक्षा उसकी स्टार्ट होती थी और उसकी उच्च शिक्षा तक उसका अध्ययन करवाया जाता। घर से दूर रहने से छात्र में एकाग्रता भी बनी रहती। शिष्य अपने गुरु की उपस्थिति में अपना अध्ययन पूरा करता और बाद में अध्ययन पूर्ण होने पर उसकी परीक्षा लेकर उसका मूल्यांकन कर उसे घर भेज दिया जाता था। वर्तमान समय में आश्रमों की जगह विद्यालय, स्कूल ने ले ली है। छात्र शिक्षक का संबंध वही रहा है, शिक्षण प्रणाली वही रही है। छात्र नियमित विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर लौट जाते हैं। लेकिन वर्तमान तकनीकी युग के चलते ऑनलाइन शिक्षा ने यह सब बदल दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन को भविष्य में ज्यादा प्रचलन में लाने के बजाय इसे विकल्प के रूप में काम में लिया जाना एक बेहतर उपाय हो सकता है। यदि कोई स्टूडेंट या एजुकेटर किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर किसी दुर्घटनावश वो कॉलेज या अपने क्लास में आने में असमर्थ है, तो ऐसे समय में वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को काम में लेकर अपनी दैनिक अध्ययन, दैनिक स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सभी को मेरे विचार अच्छे लगे हों। समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Manish. The next participant is Deeptarika Roy. She is from Sri Gopal Banerjee College, West Bengal. Deeptarika Roy. Deeptarika Roy, are you there? मेरे ख्याल से वो है नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से नहीं होंगे। नेक्स्ट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना। हाँ, नेक्स्ट बुलाइए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है राम्या वीएम।
Alva Center for Post Graduate Studies, Karnataka. हेलो सर. यस प्लीज. आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है. राम्या भी है. राम्या प्लीज. सर राम्या का माइक म्यूट हो गया है. राम्या जी अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए. राम्या unmute yourself please. Hello, sir. Yes, please continue. A very good afternoon to everyone. And this is Ramya from Alva's College from Karnataka. A very happy Independence Day to everyone. Wishing you a good health and happy life in this pandemic period. I like to start my speech on this online education, the present and future condition in this pandemic period. So first I would like to tell that in this pandemic period we are facing very problems in case of studying and the online classes, certain kind of issues like internet, and the parents are not allowing to sit for long hours in front of the computer or the mobiles, because excess use of these mobiles may hinder our health and all those things. So I believe that in this pandemic period that online education is the best part, because we are not able to go for a class in this pandemic period. So online education can lead to continuous learning, because learning is a continuous process. Due to this pandemic period we cannot stop the learning process, so we need to continue our learning with the online quizzes, competitions like these webinars and many more things. So we can learn so many things from these online classes. So quality of the training of the teachers is very must and should be there. For children below 10 years, this is not the best option to go for online classes. The one who are elder, the one who are about 10 years, they are best for online classes. In this present situation, online classes are the best. In future, if the pandemic is normal, so we can go for the offline classes. So syllabus have been well explained with the PPTs, animations are well explained in this, and technology plays a major role in this digitalized India. We can make a best out of this by online classes. So I believe that my speech is too short, but I conveyed what I had thought. Thank you. Thank you, Ramya. The next one is Saloni Jadon. She is from Sant Hinderram College. Saloni. Hello, sir. Am I audible yes. to you? Yeah, you are audible now. And please start. Okay. Jai Hind, everyone. I am Saloni Jadon from the Sant Hinderram Girls College, Bhopal. I am a student of the MSc Biotechnology first year, and I am here to deliver a speech on the online education present and future. So, online education is a flexible instructional delivery system that encompasses any kind of the learning take place via internet. Online learning gives the educator an opportunity to reach students who may not able to enroll in a traditional classroom, and support students who need to work on their own schedule at their own place. So it becomes very easy for students to reach the class through their house only. The quantity of the distance learning and the online degree in the most discipline is the large increasing rapidly. Schools and institutions that offers online learning are also increasing in number of students pursuing degree via online approach must be selected to ensure that their coursework is done through the respected and the credential institution. Online education has become a viable and the exciting method for the instructional delivery in the global business society that runs on 24-hour schedule, because it provides students with a great flexibility. With increased the availability of the internet and computer technology, students are able to access information anytime and any place that would be normally be available through a traditional classroom. Studies have shown that the students learn just as effectively in an online classroom as they do in traditional classroom.
Online education offers many positive benefits since students like have flexibility in taking classes, working at their own place at any time, face any community or parking hassles, learn to become the responsible for their own education with the information available at their fingertips, find the submission of the assignment easy and convenient, are more apt to voice their own opinions and share debate issue with the other students as well, learn from students during a group discussion. Possible negative effects of the online learning is also come with the students, like everyone cannot afford or submit the some students have the financial issue that cannot buy a smartphone, laptop and good internet connection, so they are not able to join a online class, may miss the face-to-face interaction with the instructor and among students. And negative thing is that may prefer to attend the traditional classes with the instructor who teaches and guided them through the course, not through the internet. That is more visible and the effective learning method for the students. Find access to the technology necessary, challenging, and the availability of the technical support is limited. In addition, some administrators and instructors who do not understand the workload may display a negative attitude towards the online education. Online teaching is here to stay. Many students prefer the online classroom since it offers flexibility in their busy schedule. With the proliferation to the information and knowledge, students must become lifelong learners in the today's world. And online education plays an important role in helping individual access to the learning self-directed instructor, which enhance the software, hardware, internet access. More option for the online education will become available with student enrollments increasing faster than the classroom can be built. Students become more proficient in technology and students pursuing an education that meets their need. The future online education will continue to grow. Online degree programs will become more widely accepted as they become more common practice. So there are some drawbacks of the online education, like students become lazy. They become too lazy to attend online education because it is too easy. Just lie down on a bed or sitting on a table chair and attend the online classes. So a student become lazy. So it is a major drawback of the online education system. So online education have many advantages and disadvantages. Saloni, your time is now over. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. The next one is Ritika Dikshit. She is from SS College Shahjahanpur. Ritika, Yes, एक अनाउंसमेंट है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि अपने अपने वीडियो प्लीज ऑफ कर लें. जो पार्टिसिपेंट जब स्पीच दे रहा होगा केवल वही अपना वीडियो ऑन रखेगा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना वीडियो ऑफ करें. प्लीज रितिका. Good afternoon to all teachers, jury members and participants. Myself Ritika Dikshit, MSc Botany from SS College Shahjahanpur. I would like to share my views on the topic online education present and future. The Indian education system is often the subject of discussion over outdated curriculum, rote learning, cost of education, quality of mentors, and lack of infrastructure. On the positive side of our country, boost of world-class institutes such as IIT, IIM, AIMS, and JNU, etc. We are also one of the largest and oldest education system in the world. Online education is definitely has a bright future in India, but the journey is fraught with several challenges like insufficient digital infrastructure. While government has been making efforts to create and improve a digital infrastructure around the country, there has not been any noteworthy progress, and also poor learning engagement. Like in traditional classrooms, the student-teacher engagement is very high.
Learners can approach the instructor and fellow students for feedback or discussion and get their concern addressed on the spot. E-learning is not yet developed to level to stimulate open-ended or crowded learning unless the courses are imparted live with the help of an online instructor. But the lack of standardization of online programs and their formal acceptability still remain a concern. The e-learning players offer multiple courses on the same subject with different level of certifications. Language of the course is one of the major challenge. Actually, India is a multilingualistic country and the majority of the population comes from non-urban areas. The online sources mostly focus on English content. Hence, the non-English speaking students struggle with the availability of vernacular content. E-learning sector in India will witness the several trends in the next few years. In my opinion, there will be a convergence of online and offline education on providing supplementary education such as after-school coaching, e-tutorial, internship, and live projects. E-learning providers will develop peer-to-peer models to establish collaborating learning between students through notes and e-learning has a promising future. It could be on its way to become the next sunrise industry. However, it is highly unlikely that it will replace our traditional learning. Rather, both models will work in tandem. The trio of content, delivery, and access will act as a change agent in shaping up online education. In last few seconds, I conclude my speech with benefits of online education like the flexibility to work, balancing work with family and studies, the ability to study anytime, anywhere, 24/7, access to accelerated fast-track courses, a variety of online courses and degree programs, a different way to learn compared to a traditional college setting. Thank you. Thank you, Ritika. The next one is Aditi Singh. She is from SS College, Shahjahanpur. Aditi Singh. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes. Please carry on. All the birds find shelter during the rain, but it's an eagle who avoids the rain by flying above the clouds. From this, we can say problems are common, but it's the attitude that makes the difference. Beginning from this line, myself, Aditi Singh, from BSc second year, SS College, Shahjahanpur. A very heartfelt thanks to all the teachers and the organizers for giving us this opportunity so that we can present our views on our today's topic, education, present and future. Firstly, we should know what we are talking about. What is online education? We can say it's a virtual or an e-way of learning, studying and gaining the knowledge. After this, the question that arises in our mind is why we need online education. There can be many reasons like location, transportation, accessibilities, and medical condition, financial condition. But if we look in the present time, we all know that the world is facing the pandemic of COVID-19. And in this time, online education is boon for everyone. For online education, all we need is a cell phone and an internet connection. But that's not all. We also need to be very disciplined and self-motivated, because after all, it's for us. And in recent time in India, it's been in a rapid progress in terms of online education. As after United States, India is being the second in the highest number of online courses enrollment. It is a major discussed topic in the terms of education domain. It takes away all the drawbacks, or we can say all the limitations that are based on classroom education, like location, transportation, cost. Let's briefly discuss about it. Like in my college, there are many students coming from the village areas. So to reach the college on time, they have to leave their house 2-3 hours before the college time so that they can get a proper public transport. And apart from this, there are millions of students in India who goes to the other countries for better education.
And if a student can get the same quality education by sitting right to their homes, so then why they will spend thousands of dollars in going abroad and studying? So we can say online education has taken away the geographical as well as the financial barrier. And let's talk about something like urban and rural difference. We cannot neglect our traditional way of education, but in this pandemic situation, online education is going very well in urban areas. But if we talk about the rural areas, it's not going quite well, because we are also aware that in India there are 640,000 villages and 830 million of rural population. We all need to lift up together. And if we look out the online education in rural areas, it just seems like a sheepwalk. There is no concept of study material, no involvement of students, just a compulsory attendance for the teachers, and all this wrap up within a month or so. I'm not against it, but I'm just trying to say that if someone has taken the initiative, they must continue it with a proper protocol and also with the involvement of students. It's a long-term project which will give us a better education and bring this generation on a better platform. And at last but not the least, there is a saying of Dr. APJ Abdul Kalam कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है. And on this platform, we all are trying. Our teachers, organizers, mentors, they are giving their best. And as a student, we are totally supporting in their all their efforts. Might not be today, but surely in future, this will definitely lead us to the more better and more vast platform for gaining knowledge. And there is no harm in taking the risk. If we win, we will lead. And if we lose, we will guide. With these lines, I would like to sum up my views, and a huge thanks to everyone for being a patient listener. Thank you, sir. Thank you, Aditi. Now, the next one is Randeep Kaur, Government PG College, Bajpur. Randeep Kaur. Randeep Kaur, आप अवेलेबल हैं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, please. Yes, please. साउंड आ रही है मेरी? आप ओके. वीडियो भी ऑन करें आप प्लीज. स्पीकर्स जितने भी हैं. यस please. सर. सर वीडियो ऑन है सर. जश्न आजादी का मुबारक हो देशवासियों को, फांसी का फंदा प्यारा था वतन रखवालों को. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज रणदीप कौर फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर, उत्तराखंड. आई एम अ बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे ऑनलाइन एजुकेशन प्रेजेंट एंड के बारे में अपने विचार आपके सामने रखने की जरूरत पड़ी है. सॉरी सर, जस्ट अ वेट. इडियट, मेरी स्पीच चल रही है. सर माय ब्रदर इज हैंगिंग. आई एम सॉरी सर. कैन आई अगेन प्लीज वन चांस? हाँ प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का. हाँ प्लीज. सर मेरे ब्रदर ने आके डिस्टर्ब कर दिया. क्या मैं दोबारा से चांस ले सकती हूँ? ओनली वन. ओके प्लीज. जश्न आजादी का मुबारक हो देशवासियों को, फंदा प्यारा था वतन के रखवालों को. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. रणदीप कौर. आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर, उत्तराखंड. आई एम अ बीएससी फर्स्ट ईयर. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे अपने विचार ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर के बारे में रखने का आपके सामने मौका मिला है. इस समय हम सभी जानते हैं पूरा विश्व कोरोना के संकट का सामना कर रहा है और पिछले काफी महीनों से सब कुछ बंद पड़ा है. लेकिन 7-8 महीने से स्कूल कॉलेज बंद हो जाने की वजह से हमारे भारत का भविष्य संकट में पड़ सकता था. ऑनलाइन स्टडी की बच गया. जी हाँ, क्योंकि अगर 7-8 महीने से ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कराई जाती तो यकीनन ना जाने कितने स्टूडेंट स्टडी से उनका जो जुड़ाव था वो बिल्कुल खो जाता और हमारा देश 21 साल पीछे जा सकता था. लेकिन सरकार ने उनके तुरंत बाद ही ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, जिससे कि बच्चों का स्टडी से नहीं टूटा और साथ ही साथ टीचर्स का भी क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन करवा के स्टूडेंट का जो स्टडी में इंटरेस्ट था वो भी बना रहा. मैं थैंक्स कहती हूं अपने देश के सभी तमाम टीचर्स को, क्योंकि जिस तरह एक और डॉक्टर, नर्स देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमारे देश के लाखों टीचर
स्टडी प्रोवाइड करा के देश का भविष्य बचा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों से ही है। अगर बच्चे ही शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो यकीनन हमारा देश अंधेरे जा सकता है। तो थैंक्स टू ऑल टीचर्स। साथ ही साथ पेरेंट्स की थोड़ी टेंशन हुई, क्योंकि घर बैठे ही सही बच्चे कुछ सीख तो रहे हैं न्यू। अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की, तो हम 100% कह सकते हैं कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश भी इन कनाडा, जापान, अमेरिका डेवलप कंट्री में चेंज हो सकता है। मेरे साथियों ने आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत अच्छे बेनिफिट बताए जो कि बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा बेनिफिट आपके सामने शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद एब्जॉर्व किया है। इस समय चाहे लड़का लड़की समान समझा जाता हो, लेकिन अभी भी शहर में तो नहीं, गांव में लड़कियों 10th के बाद नहीं तो 12th के बाद घर पे बिठा दिया जाता है। कारण होता है कि इसमें देखा होता है पेरेंट्स ने कि कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि रियल लाइफ में ऐसे ही होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेजना तो चाहते हैं कि नहीं भेज पाते हैं। उन्हें डर होता है कि आजकल भारत में रेप के इतने केसेस हो, कहीं वे अपनी बेटियों को बाहर भेजें और वो भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। इन तमाम कारणों के कारण ना जाने कितनी बेटियां 10th के बाद और 12th के बाद अपने सपनों को खत्म कर देती हैं। तो इन लड़कियों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ वह बहू बेटी जो कि पढ़ना चाहती है लेकिन के ऊपर उनके पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो जाके नहीं पढ़ सकती कॉलेज में डेली, ना ही वो ट्यूशन ले सकती हैं, तो उनके लिए भी एजुकेशन एक वरदान साबित होगा। मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी। तुझको डर लगता है मुझको बाहर भेजने को, कैसे रोका मेरे मन को सपने सेजने को, ऑनलाइन माध्यम से ही सही मैं लूंगी, घर बैठे ही सही अपने सपने पूरे कर लूंगी। जी हाँ, आपको अगर डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं कि जो लड़कियां कॉलेज में अटेंडेंस कम होती है, अगर आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा होगी। कारण होता है कि पेरेंट्स उन्हें डेली कॉलेज नहीं भेजती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट ही हैं, हाँ इसके नुकसान भी हैं, लेकिन लाभ और हानियां तो सबके होते हैं ना। इसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है। सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। साइंस कितनी चीजें यूज कर रहे हैं तो उनके लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। ये तो हमारी डिपेंड करता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी सोच अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, तो हम चाकू का प्रयोग सब्जी काटने में करते हैं, और नकारात्मक होगी तो हम इनको मारने में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी डिपेंड सोच पर करता है। इसी तरह एजुकेशन है, इसकी मदद से हम अपने फ्यूचर को ब्राइट भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन का बहाना बना के हम देख रहे हैं मूवी सीरियल तो अपने फ्यूचर को बिगाड़ भी सकते हैं। आपने कभी विचार किया है कि जैसे ऑडी, फरारी, BMW कार की जो कंपनियों के मालिक होते हैं वो इनका एड टीवी में क्यों नहीं देते हैं? कारण उन्हें पता है कि जो व्यक्ति इन कारों को खरीदे ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट मूवी और सीरियल में करेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन है या ऑफलाइन मिलती है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, अपने फ्यूचर को ना कि बिगाड़िए। इस तरह का फ्यूचर बनाइए कि भारत को ही नहीं विश्व को आप पर गर्व हो, और आपकी वजह से अपने देश का भी नाम में लिखा जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू रणदीप। थैंक यू सर। इस कड़ी में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं सुषमा यादव, शाहजहांपुर एसएस कॉलेज से। सुषमा यादव। सुषमा, क्या आप सुन रही हैं? यस सर, हाँ यस प्लीज चालू करें। Good morning everyone. Myself Sushma Yadav from SSPG College, Shahjahanpur. Now we are gathered on 15 August. Today is our 74th Independence Day. Now I start my lecture on online education, present on future. Online education is very beneficial for us. We have learned many new things and clear all doubts in any educational field by online education. Online education of today is empowering more students. As a result, using an online education platform allows for a better balance of work and studies. So there's no need anything of online education in the time of COVID-19 pandemic is safe for everyone with follow social distancing rules. The present and future of online education I find brightly as a unique and valuable way to help more people get the education they deserve.
The institution focused on helping more pupils to get the skills they need to succeed. Online education is built around the ideas that more people can learn when unique options are available. It's also expected that online education of the future will continue to grow, with even more students wanting an online degree than the traditional one. This will allow more students to connect with people all around the world as part of their learning, utilize technology, and empower themselves to become self-motivated learners. Today is very exciting time for technology and education. Online programs offer technology-based instructional environment that extends learning opportunities and can provide top quality education through a variety of formats and modalities. E-learning method requires only a good internet connection and mobile phone to be recorded for later use. Even with recently generated excitement and enthusiasm for online programs, it is important to recognize that some subjects should not be taught online because the electronic medium does not permit the best method of instruction. For example, hand-on subjects such as public speaking and sports, where physical movements and practice contribute to the achievement of the learning objectives. Their subjects are not probably best taught in a face-to-face traditional learning environment. However, the solution of the short still underlines the fact that online teaching cannot satisfy our educational needs and goals just because it may be technology possible to stimulate a physical learning experience. This does not necessarily mean that is the best way to teach it. Online education serves to be a time-saving and cost-effective procedure for any career. Some students better concentration in online classes due to the lack of classroom activities. Traditionally, in formal education, the interaction occurs largely between the students and the teacher, but as students and teachers become distant from each other in the virtual classroom, creative ideas for instructions continue to be delivered. Online education is very nice, but face-to-face discussion are more effective and covers a lot of more topics. Thank you, everyone. Thank you, Susma. Next one is Krishna Rana, Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh, Agra. Krishna Rana. कृष्ण राणा आप क्या मौजूद है? मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है. नेक्स्ट वन इज नासिर शौकत, GDC किश्तवाड़, J&K से. नासिर, आर यू देयर? नासिर, आर यू देयर? आई थिंक नासिर भी मौजूद नहीं है. इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हमारे हैं विजय लक्ष्मी गुप्ता, श्री मुरली मनोहर टाउन PG कॉलेज बलिया. विजय लक्ष्मी गुप्ता, विजय लक्ष्मी गुप्ता, आई थिंक ये भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज अपर्णा मिश्रा, SS कॉलेज शाहजहांपुर. अपर्णा मिश्रा. मोन्टू चौहान, प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ करें. अपर्णा मिश्रा, आई थिंक ये भी मौजूद नहीं है. नेक्स्ट वन इज कुलदीप कुमार, SS कॉलेज शाहजहांपुर. अपर्णा मिश्रा मौजूद है, उनका तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो सुन नहीं रही है, पता नहीं क्या. चलो आप नेक्स्ट. कुमार, कुलदीप कुमार है? नहीं है, आई थिंक ये भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज अंशु सिंह, SS कॉलेज शाहजहांपुर. अंशु सिंह इज देयर? हाँ, यस अंशु, प्लीज कैरी ऑन. Good afternoon, sir. Myself Anshu Singh, BSc second year from SS College, Shahjahanpur. My topic is online education, present and future. एजुकेशन लोगों के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नाउ इट इज प्रेजेंट लाइफ में ऑनलाइन एजुकेशन कैसे है. ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट दूर से और दुनिया के किसी भी कोने से
इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टीचर्स हमें स्काइप, जूम, गूगल मीट एक्सेट्रा के थ्रू पढ़ाते हैं और स्टूडेंट लैपटॉप, कंप्यूटर टीचर्स को सुन सकते हैं। टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे टॉपिक और भी क्लियर हो जाता है, जिससे स्टूडेंट घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के इस दौरान जहाँ सभी स्कूल एंड कॉलेजेस बंद हैं, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन ने अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के सारे देशों के सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ करके इजीली स्टडी कर पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए गुड एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोग हाई स्केल पर अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि यह सुटेबल है। ऑनलाइन एजुकेशन से पैसे और ऑन टाइम की भी बचत होती है। कुछ स्टूडेंट जो रूरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन नहीं है, उनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने में अनेबल हैं। जहाँ तक है सिविल सर्विस एग्जाम एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जैसी पढ़ाई इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि ऑनलाइन हो रही है। यह कहना मुश्किल है कि कोरोना काल कब तक चलेगा, और इसलिए स्टूडेंट को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कंपलसरी है। इस कंडीशन में ऑनलाइन एजुकेशन एक बेटर ऑप्शन है। नाउ इट इज तेजी से बढ़ती हुई दुनिया के पास टाइम की कमी है और वेब के माध्यम से दी जाने वाली सभी सर्विसेज पॉपुलैरिटी प्राप्त कर रही हैं। ऑनलाइन स्टडी के तरीके से कई एडवांटेज भी हैं या बहुत सुटेबल है। इस फैसिलिटी के यूज से आप अपने घर पर ही रहकर डिस्कस कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह यहाँ भी एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर एंड इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑनलाइन स्टडी की प्रोसेस का इम्पोर्टेंस और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रोसेस का राइट एग्जाम्पल हाल ही में फैली कोविड-19 पेंडेमिक है, जिसका इफेक्ट सारी दुनिया में है और इसके बचने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। मोस्टली कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन स्टडी प्रोसेस अपना रहे हैं। रियल में ऑनलाइन स्टडी की प्रोसेस स्कूली शिक्षा के लिए सेफ चॉइस है। ऑनलाइन स्टडी की प्रोसेस में कई एडवांटेज के अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जिस तरह एक्चुअल क्लासेस में जो एक्साइटेड उनका माहौल होता है, यहाँ उस एटमॉस्फेयर की कमी होती है। एक क्लासरूम और लाइव क्लास में जो एंजॉय का एटमॉस्फेयर होता है, ऑनलाइन स्टडी में उस माहौल की कमी होती है। यहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट एक दूसरे से ओनली एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कारण गैजेट का ओवर एक्सपोजर से हेल्थ के कई खतरे जैसे हेडेक, आइज की वीकनेस होना एंड कंसंट्रेशन में भी कमी आती है। हेल्थ रिलेटेड इतने डिसएडवांटेज के बाद भी इस स्टडी प्रोसेस का यूज बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुआ है। जबकि आपको घर छोड़ना आपकी फैसिलिटी एंड हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए बर्डन प्रूव होता है। थैंक यू सर। थैंक यू अंशु। नेक्स्ट वन इज सुशील कुमार। Hello, sir. हाँ, सुशील कुमार। Sir, myself, Aparna Mishra. Hello, sir. Are you audible, sir? नो, अपर्णा मिश्रा, आपका टाइम, आपका टर्न Sorry, निकल चुका sir. है। Sorry, sir, please. प्लीज जजेस, ज्यूरी प्लीज आप बताएं क्या इनको अलाउ किया जाए या नहीं। लास्ट में Okay, thank you, sir. हाँ, लास्ट में आपका नंबर लास्ट में आएगा अपर्णा। नेक्स्ट वन इज सुशील कुमार। सुशील कुमार सुन पा रहे हैं? सुशील कुमार कहाँ से हैं रमेश भाई? ये इसमें टेबल नंबर लिखा हुआ है कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आगे उत्तर प्रदेश बस केवल। आई थिंक ये मेरे ख्याल से है नहीं इस समय। नेक्स्ट वन इज निधि शर्मा, एसएसबी पीजी कॉलेज हापुड़। निधि शर्मा। Yes, sir. I am audible. हाँ, yes, you are audible and you will start, please. Okay, sir. Thank you. Good afternoon to all my jury members and my dear friends. My name is Nidhi Sharma. I am from SSC PG College, Hapur. First of all, I wish you Happy Independence Day to all. सबसे पहले मैं आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताना चाहूंगी। मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। नंबर 1, ऑनलाइन एजुकेशन सेव टाइम। लर्नर जो अपना टाइम ऑफलाइन क्लासेस में जाने के लिए यूज करता है, हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो टाइम सेव कर सकते हैं अपना। नंबर 2, ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल। इट मींस ऑनलाइन क्लासेस का कोई फिक्स क्लास अरेंजमेंट नहीं होता। बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी अरेंजमेंट कर सकता है और जहां चाहे जैसे चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। थर्ड, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। इट मींस
You decided how fast or how slow you want to study. Or in other words, we can say that online education provides student-centered approach. Number 4, there is no geographical barrier in online education. हमने देखा है कि कुछ geographical barriers होने के कारण कुछ बच्चे अपनी एजुकेशन पूरा नहीं कर सकते, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स या लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। नंबर 6, online education provide student whenever he want to study and whatever he want to study वो कर सकते हैं, क्योंकि various types of programs and classes are available on online education platform. Number 6, missed class can be gained by a student anytime, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो अगर बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो वहां से वो अपनी मिस क्लास को देख सकता है। मेरिट्स के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब मैं आपको डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगी। नंबर 1, हेल्थ इश्यूज लाइक आई स्ट्रेन, पेन इन नेक एंड अदर्स। हम सबको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन अगर बच्चा 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अपनी आंखों में दर्द महसूस कर रहा है या पेन महसूस कर रहा है, तो वो बच्चा सेल्फ स्टडी कैसे कर पाएगा? सेल्फ स्टडी तो दूर, वो बच्चा जो उसने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है उसको भी स्टडी नहीं कर पाएगा। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की एक हमारी डीमेरिट हुई। नंबर 2, doubts of a student cannot be cleared through online education. As we all know that there is no learning without any doubts. ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर चाहे अपना 100% से क्यों ना पढ़ा रहा हो, कितने ही अच्छे मेथड ऑफ टीचिंग वो यूज क्यों ना कर रहा हो, लेकिन बच्चे के अंदर डाउट्स आएंगे, क्योंकि अगर जहाँ लर्निंग है वहाँ डाउट्स है, तो बच्चा वो डाउट्स अपना कैसे क्लियर करे टीचर से, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो ये भी हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की डिमेरिट हुई। Number 3, proper evaluation of a student cannot be done through online education. बहुत सारे क्यूज और ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों को असेस करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए, बट आर दे रिलायबल? नो, दे आर नॉट रिलायबल, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चा वो टेस्ट या वो क्यूज किसकी हेल्प के थ्रू दे रहा है। क्या वो बुक का यूज करके दे रहा है, गूगल पे सर्च करके दे रहा है, या अपनी कंटेंट या अपनी स्किल्स के थ्रू दे रहा है? तो हम बच्चों को वहां पे असेस या इवैल्यूएट नहीं कर सकते। नंबर 4, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैनॉट बी टॉट थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि बच्चे के पास वो लैबोरेटरी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते उसके पास, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बच्चा जब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वो करके खुद नहीं सीख सकता। नंबर 6, नेटवर्क इशू एंड लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। नंबर 7, बच्चे के अंदर कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। तो एट लास्ट आई कैन से दैट हमें बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड के थ्रू देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बच्चे को आपका टाइम पूरा हो रहा है सर, 1 मिनट। बच्चे को हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू ही एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट आए, इफेक्टिव बने हमारी क्लास, क्योंकि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट कंटेंट से रिलेटेड इंटरेक्शन करता है। और जब कंटेंट 2 टाइप का होता है हमारा, प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव। टीचर सब्जेक्टिव नॉलेज तो बच्चों को ऑनलाइन दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दे सकता। ओके, थैंक यू। Welcome. Next one is Neha Chauhan, SSB PG College, Hapur. Neha Chauhan. हेलो। Yes, please. सर सुन पा रहे हैं? Please, yes. Start करें। ओके, थैंक यू सर। आदरणीय जज महोदय, आयोजक महोदय और मेरे प्यारे प्रतियोगी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं SSB डिग्री कॉलेज हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं BEd फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टीचर जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताया, डॉक्टर सविता तनेजा मैम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताया और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकी जिससे मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर सकूं।
अब हम अपने टाइम लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी प्रतियोगिता की तरफ ध्यान देते हैं। हमारी प्रतियोगिता का टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वैसे तो मेरे सह प्रतियोगियों ने सभी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा अलग बता पाऊँ। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण आधार है और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षित व्यक्ति ही दुनिया के किसी के भी कोने में जाकर अपना एक अच्छा भविष्य निर्मित कर सकता है। आजकल वर्तमान में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, वहां पर ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। ऑनलाइन टीचिंग क्या है? ऑनलाइन टीचिंग पढ़ने पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आए बिना अलग अलग स्थानों पर होते हुए भी टीचिंग लर्निंग होती है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जहां शिक्षक दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से अपने छात्रों से जुड़ सकता है, वहीं ऐसी बहुत सारी एप्स हैं आज जिनके द्वारा नेहा आप अनम्यूट हो जाइए। नेहा आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गई आप। हाँ सही आपका है। माइक बंद हो गया नेहा, अपना माइक दोबारा ऑन कर लीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सर एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली हो गया, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लॉकडाउन के इस वक्त में जहाँ सभी शिक्षा केंद्र बंद हैं, वहां पर ऑनलाइन टीचिंग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा उसको प्रचलन में लाया जा रहा है। वैसे तो 1993 से ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल गया था, कानूनी कर दिया गया था, लेकिन आज के टाइम में जहाँ लोगों के पास समय कम है, ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा उनके सामने समय और उम्र की सीमा का प्रतिबंध नहीं होता। वो किसी भी उम्र में किसी भी समय पर अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, मेडिकल है, ये सब भी शिक्षा संस्थानों में न करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इनके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, ताकि हमारा देश ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, इसी के चलते हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, बहुत ही प्रयासरत हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट का विचार तो उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था, सन 2018-20 दिसंबर को, लेकिन इसकी शुरुआत 10 अगस्त से की गई है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पहली बार संभव हुआ है कि समुद्र में से ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई हैं, जिससे कि ऐसी जगह पर इंटरनेट पहुंचाया जा सके या इंटरनेट सुविधा दी जा सके जहां पर अभी तक इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कि अंडमान निकोबार। वहां के लोगों को भी इंटरनेट की सुविधाएं मिल सके, बच्चे वहां के ऑनलाइन स्टडी कर सकें, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा उठा सकें। इसीलिए ये कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, ताकि देश के कोने कोने तक शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा सके। ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा शिक्षक घर बैठे हुए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी जो शिक्षा है उसको लोगों तक पहुंचा सकता है। शिक्षक को गुरु को एक भगवान का रूप माना जाता है और वो अपना ज्ञान जितने से ज्यादा प्रदान बच्चों को करता है, उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा ये संभव हुआ है कि एक शिक्षक अपने ज्ञान को हर दुनिया के कोने कोने तक छात्रों तक पहुंचा सके। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और घर बैठकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे में उनको भी शिक्षा प्रदान की जा सके। और बच्चों के लिए भी ये सुविधा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनका डेटा अपने पास रखा जा सकता है। तो ऐसे में उनके पास ये सुविधा होती है कि वो उस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन टीचर से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल या पीसी होता है, इंटरनेट कनेक्शन, एप्स, हेडफोन वगैरह वगैरह। तो आज के टाइम में वैसे तो हर व्यक्ति के पास ये सब चीजें होती हैं। वर्तमान में जो हालात नेहा आपका टाइम पूरा हो रहा है। जस्ट अ मिनट सर, बस
कंप्लीट करें। जो आज का टाइम है उसमें तो ऑनलाइन टीचिंग का बोलबाला है ही, लेकिन फ्यूचर में आई होप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो रूरल एरिया है वहाँ पर इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं, वो कार्य कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में हमारी ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही फ्यूचर में अच्छी तरह से हो पाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा। नेक्स्ट वन इज निर्मला चौहान, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन। निर्मला चौहान, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन। आई थिंक निर्मला चौहान नहीं है हम लोगों के साथ में। द नेक्स्ट वन इज राधा जादव, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन। राधा जादव, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन। आई थिंक राधा भी हम लोग के साथ नहीं है। एक सीक्वेंस में अपर्णा मिश्रा छूट गई थी। ज्वेरी ने जो है वो जिन्होंने ये परमिशन दिया है कि उनको लास्ट में लिया जाए, तो नाउ अपर्णा मिश्रा। Okay, sir. Thank you, sir. I am audible, sir. Hello, sir. Just start, please. I am Pranam, sir. Pranam, sir. Hello, sir. हाँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट रखो। Okay, sir. Thank you. वीडियो ऑन करें आप अपना, वीडियो ऑन करें पहले। Okay, thank you, sir. नहीं, ऑडियो रहने दो, सर। वीडियो ऑफ रहने दो। Okay, sir. सर, आप सभी लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड प्रणाम। आदर्श पांडे सर। आज का टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन, ई शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ई लर्निंग को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी को व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। सूचना एवं संचार प्रणालियां चाहे इनमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या ना हो, शिक्षा प्रणालियों को क्रियान्वित करने वाली विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क की समर्थित अंतरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाओं और डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य सामग्रियों का वितरण इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो व वीडियो टैप, उपग्रह, टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। इसे खुद ब खुद या अनुदेशक के नेतृत्व में किया जाता है और इसका माध्यम पाठ्य छवि, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग, वीडियो और ऑडियो है। सर, जैसा कि कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही विकास हुआ है एंड सर गूगल फॉर्म के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट के बीच बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है। एक बहुत ही अच्छी तकनीक है विद्यार्थियों को डायरेक्टली टीचरों से गौरवान्वित होने की। जैसा कि कहा गया है कि विश्व का ज्ञान और आज तक की संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली होगा। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर। थैंक यू अपर्णा। आई थिंक सर ये सबसे लास्ट हमारी कैंडिडेट थी। मेरे ख्याल से निर्मला चौहान ने ज्वाइन कर लिया है। अगर परमिशन हो जजेस की तो क्या इनको चांस दिया जाए? पूछ लो एक बार, अगर निर्मला चौहान। हाँ, करवा दीजिए, कोई बात नहीं, करवा दीजिए। निर्मला चौहान, प्लीज स्टार्ट। हाँ जी। जी सर, वो फोन की बैटरी डेड हो गई थी, रख दिया था। नाउ प्लीज स्टार्ट। हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप प्लीज जारी करें। सर, मैं निर्मला चौहान, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन एमपी से हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। स्पीच देना है सर, मैंने कभी दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सर,
ऑनलाइन एजुकेशन प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण सब वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम सब ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन सर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत जगह नहीं मिल पाता, जैसे मेरे यहाँ ही नहीं मिल रहा है अच्छे से। वो अभी मैं मामा के यहाँ थी, वो गांव था, वहाँ पर भी तो वहाँ पे जब वेबिनार होते थे मैम लोग लिंक सेंड करते थे पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ पे वो कर ही नहीं पाती थी। तो सर और ऑनलाइन एजुकेशन से वैसे भी मतलब सर मैं नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी। नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी, ओके, वेरी गुड। नाउ ओवर टू डॉक्टर अतुल उपेती जी। थैंक यू सर। मैं इस बीच में उपेती साहब, सर मैं ये चाहूंगा रमेश सर, एक बार आप ये बता दें कि कौन कौन लोग आज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। ओके सर, ओके। नाम, केवल नाम बोल दें आप। एक सेकंड। सर मैंने तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया है। हाँ, अब रमेश सर आप शुरू से नाम बोल दीजिए जो लोग नहीं रहे। मैं बोलता हूँ जी। या सीरियल नंबर बोल दीजिए आप, केवल सीरियल नंबर बोल दीजिए आप। नहीं सर, वो अपना जब तक सीरियल नंबर एक बार अपनी लिस्ट से मैच कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, उसमें उनको 1-2 मिनट लगेंगे मुझे लग रहा है। ठीक। वैसे तो 19 पार्टिसिपेंट्स ने बोला है, इंक्लूडिंग द लास्ट वन। तो मैं गिन रहा था उनको, उनकी लिस्ट आपने भी बना ली और मैंने भी बना ली है। मैं देख रहा था इंडिपेंडेंट दोनों की लिस्ट मैच कर गई है हमारी, तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं सर आपके साथ, तो आई एम रियली अमेज्ड टू हियर सच मैच्योर, ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर थॉट्स फ्रॉम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। और वास्तव में मैं अब समझ पा रहा हूं कि हमारे जजेस कितनी मुश्किल में है इस समय। और थैंक यू सर मुझे जज ना बनाने के लिए। और मुझे नहीं पता कि मैडम और सर किस तरह से इनको जज करने वाले हैं, तो बहुत टफ टास्क होने वाला है इनके लिए। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस अपने और विचार सब बच्चों ने रखे। सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत मैच्योरली इसको प्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगा सर, शायद आप भी सहमत होंगे, आदर्श पांडे सर या अमित वैश्य सर या मैडम, हम लोग जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के सामने जो फ्यूचर है वो सिर्फ लाइव क्लास लेने की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लाइव क्लासेस हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा पार्ट है। जब तक हम अपने मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन ना करके कोर्सेज को ऑनलाइन तरीके से ना चलाएं, तब तक ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारी कंप्लीट होती नहीं है। हम लोगों के कोर्सेज जो हैं वो अभी भी ऑफलाइन माध्यम से ही चल रहे हैं। उनके बीच में एक छोटी सी चीज हमने ले ली है, ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का अपना फायदा हमको इस लॉकडाउन में जरूर मिला है, लेकिन ये बात भी सच है कि जैसे हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस लेके हम पूरा नहीं कर सकते उस कमी को। या जो स्पेशल लेक्चर्स होते हैं या जो हमारा मैन टू मैन इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट टू टीचर जो इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्शन, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन इस बदलते समय के साथ अगर हम ये देखें कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए या ऑफलाइन मोड चाहिए, इस क्वेश्चन से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं हमको हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ऑनलाइन को बढ़ावा मिले, कम से कम इतना तो हो जाए। क्यों आदर्श सर, आपका क्या कहना है? हेलो जी सर। हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था बच्चों से कि जो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें हम लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, इन दोनों हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने कंटेंट्स को ऑनलाइन करना पड़ेगा, न सिर्फ क्लासेस को ऑनलाइन करके। आपका क्या कहना है इस बारे में सर? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं,
लेकिन मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग, उन लोगों के नाम पता लग जाएं जो लोग यहाँ आज मौजूद नहीं थे, ताकि उनके नाम जो है वो उसमें सर्टिफिकेट की लिस्ट से हटा दिए जाए। वो रमेश सर कर रहे हैं सर अभी, बल्कि हम लोग अच्छा, जारी ही करेंगे जो प्रेजेंट थे, जो हमारी लिस्ट है उन्हीं को जारी करेंगे। उनका नाम हम लोगों को लेने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, जो आए हुए हैं, है ना। और नहीं मतलब हम सर्टिफिकेट भेजेंगे तो हो गया था। हाँ वो आ गए सर। जी मैं लास्ट से जो चलता हूँ सबसे पहले मैं। अच्छा, एक एक करके आप नाम दीजिए। मैं 1 by 1। 24 पे मिस्टर सुशील कुमार। 24, अच्छा सीरियल नंबर हम लोग बोल दे रहे हैं, जो सीरियल नंबर 24 सुशील कुमार मौजूद नहीं थे ये। सुशील जी। देन सीरियल नंबर 22 पर कुलदीप कुमार। 22 पे कुलदीप, ठीक। 20 पे विजय लक्ष्मी गुप्ता। 20 पे विजय लक्ष्मी, ठीक। 19 पे नासिर। ठीक। 18 पे कृष्णा राणा। ठीक। देन नंबर 10 दीपतारिका रॉय। ठीक। अरे ठीक। ओके, उसके बाद एक सेकंड। हाँ ठीक, ये हो गए जी। नंबर 4 पे गरलापति अनुषा। अनुषा नंबर 4 पे, ठीक। उसके बाद मेरे ख्याल से इतने लोग नहीं थे सर मुझे। नहीं, नंबर 3 पर रीता मालवीय भी तो होगी, वो भी कहाँ थी? हाँ, रीता मालवीय इस नंबर 3 पे रीता भी तो है। जी। नंबर 3 पे रीता मालवीय भी नहीं थी। ये तो 8 ही हुए थे। प्रतिभा भी थी, अवंतिका भी थी, कृतिका अवस्थी थी, पुष्पेन चक्रवर्ती थे, शिवाजी राठौर भी थे, कोमल शर्मा थी, मनीष कुमार खरोल भी थे, अशोक पांचाल थे, राम्या वीएम थी, सलोनी थी, रितिका, अदिति, रणदीप, सुषमा, देन अपर्णा, देन अंशु, देन निधि शर्मा, देन नेहा चौहान, देन निर्मला चौहान। लास्ट में राधा नहीं थी सर। हाँ, लास्ट नंबर कितना नंबर है? राधा लास्ट 28 राधा। एक सेकेंड, इनका नहीं बनना है ना? ठीक। अब ये हमें पता लग गया कि हमारे पास कितने हैं। अब हमारे जजेस को आप बुला लीजिए, तो हमारे जजेस जो हैं वो इसको डिक्लेयर कर दें रिजल्ट को। जी। मैं आज के इस स्पीच कंपटीशन के जो हमारे जजेस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के स्पीच के रिजल्ट्स को अनाउंस करें। सो प्लीज कम ऑन। Hello, am I audible? Yes. Okay. Now, first of all, so I must congratulate SRBs and all the organizers of this speech competition, Dr. Adarsh Pandey, Ramesh, and Dr. Atul Upre, for organizing such online speech competition and most relevant issue of the present scenario. I also appreciate the enthusiasm of all participants who have come forward from different states of country. Now, Excuse me, myself, Dr. Madhumita and Dr. Hello? Yeah. Ma'am, audio is not clear. Hello? Ma'am, audio is not clear. Hello? जी। Now I am audible? हाँ, थोड़ा आपका जो है वो ऑडियो में नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम हो रही है। Hello, now it is clear? Yes. Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Okay. Now, कोमल पुष्पेंद्र and रम्या ठीक। Okay. Now myself, Dr. Madhumita and Dr. Amit Vaid. नाम हटा देने हैं, और ये जो शिवाजी, अदिति, निधि, कोमल पुष्पेंद्र, रम्या रंजीत, ये सर आपका माइक खुला हुआ है। तो 7 ये हो जाएंगे 16, बाकी जो बच्चे उनका वो बना दें। सर आपका माइक खुला हुआ है।
हाँ तो अमित वैश्य बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो आदर्श सर, आपका माइक खुला हुआ है। आदर्श अच्छा सर, हेलो हेलो मैडम am I audible? मैडम, Hello? यस यस, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। हाँ, okay. So, myself, Dr. Madhumita, I'm really impressed by all the speeches discussed. Now, all the participants, you know, have to take the webinars. Your we voice have is not audible, chosen ma'am. 5 listeners. मैडम Okay, आपकी आवाज Dr. Amit, नहीं आ रही है मैडम। Oh, डॉक्टर अमित, Hello? डॉक्टर अमित वैश्य जी, जी Hello? जी आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। जी मैडम। ओके 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 Dr. Amit, you can speak up. मैम, will you please allow me to continue? हेलो जी अमित सर, हेलो अमित सर आप मैडम की बोलिए, अमित आवाज सर आप आ रही बोलिए, है? मैडम की आवाज मैडम क्योंकि हाँ ओके 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 First of all, I would like to congratulate all the participants and organizers on this very auspicious day of independence of our India. And I congratulate all the participants from various states of our country, and I appreciate their enthusiasm. The result is ready, but I would like to tell you one thing that is very important over here, कि हमने एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था कि हम किस तरह से जज करेंगे। ऑल यू नो कि ये एक स्पीच कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन नहीं था। तो स्पीच कंपटीशन में हमने कुछ यहां पर क्राइटेरिया सेट किए थे, जिनमें हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट हमने क्राइटेरियन लिया था वो ये था कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी को कितना स्ट्राइक कर रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने यहां पर 5 अपने विनर्स को सेलेक्ट किया है, 1st to 5th, और 2 हमने कंसोलेशन प्राइजेस यहां पर डिसाइड किए हैं यूनानिमसली, मेरी सीनियर डॉक्टर मधुमिता मैम की कंसेंट से और मैंने। हालांकि डिसीजन बहुत टफ था, कुछ जगह पर हम लोगों को बहुत मुश्किल आई कि हम किसको आगे रखें किसको पीछे रखें, बट ये हमारी मजबूरी थी कि हमें 5 प्राइज हमें यहाँ पर डिसाइड करने थे। तो 5th प्राइज यहां पर जाता है मिस्टर पुष्पेंद्र फ्रॉम त्रिपुरा को, एंड 4th प्राइज गोज टू कोमल फ्रॉम पंजाब, 3rd प्राइज गोज टू निधि फ्रॉम यूपी, एंड 2nd प्राइज गोज टू अदिति फ्रॉम यूपी, एंड द विनर ऑफ दिस स्पीच कॉम्पिटिशन इज मिस्टर शिवाजी राठौर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तालियां। हेलो, am I audible? Thanks a lot, sir. Thanks a lot, Bindu Chakraborty from Tripura. और कंसोलेशन प्राइज के लिए हमने सेलेक्ट किया है कर्नाटका से राम्या को और उत्तराखंड से रणदीप को। ओवर टू यू रमेश जी। बहुत बहुत बधाई सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि 1st to 5th पे जो पार्टिसिपेंट आए हैं जिनको कंसोलेशन मिला है। लेकिन उससे बड़ा मोमेंट ये है कि आप लोगों ने आज के दिन इस स्पीच कॉम्पिटिशन में भाग लिया और बेबाकी से अपनी बात को रखा। तो मैं फाइनली इस प्रोग्राम को अतुल उपेती जी को हैंडओवर कर रहा हूं कि वो इस प्रोग्राम को समाप्त करें, प्लीज। जितने भी हमारे विनर्स हैं उन सबको बधाई, और जो लोग इस कंपटीशन में प्राइज नहीं जीत पाए लेकिन बहुत अच्छा बोले, ऐसे सभी लोगों के साथ मेरी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं, क्योंकि मैं खुद आप लोगों में से एक हूं। मैंने जितने भी कंपटीशंस में हिस्सा लिया है, कोई बहुत ज्यादा मुझे प्राइजेस कभी नहीं मिले, तो मैं समझ सकता हूं कि कितना कई बार डिसहार्टनिंग लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए, आप लोगों ने इतना अच्छा बोला है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ हूं आप लोगों से, और जरूर आप लोग अगली बार इस तरह कंपटीशन करेंगे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो प्रीति सर, माफी चाहूंगा आपको बीच में टोकने के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि सभी ने बहुत ही अच्छा बोला, जी सर, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमें कुछ प्राइजेस देने होते हैं, कुछ पोजीशंस हमें सेलेक्ट करनी होती हैं, बट दिस वाज वेरी टफ टू डिसाइड ओवर हियर। इट वाज वेरी टफ कंपटीशन। मैं अभी यही कह रहा था, मैं आदर्श सर को इस बात के लिए धन्यवाद ही दे रहा था कि अच्छा हुआ सर आपने मुझे इस बार जज नहीं बनाया। इतने मुश्किल में किस तरह आप लोगों ने काम किया मैं नहीं समझ सकता। तो
मैं अपने दोनों जजेस का मैं तो मधुमिता मैडम और डॉक्टर अमित वैश्य सर, दोनों बहुत आप लोगों ने हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छा आपका जजमेंट रहा। थैंक यू और डॉक्टर बाकी अब्दुल, सभी थैंक यू। जी हाँ जी, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को कांग्रेचुलेट करता हूँ। देखिए, पार्टिसिपेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई प्राइज विन करना, उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सब पूरी कमेटी मैं कुछ कहना चाह रहा था अप्रति साहब, मुझे अलाउ कर दीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। मैं ये अपने जूरी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने होस्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमेश चंद्रा जी का धन्यवाद करता हूं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल उप्रेती का धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम बिल्कुल टाइम से चल रहा है, केवल 9 मिनट केवल हमारे बीच कार्यक्रम के रह गए हैं और हम लोग कार्यक्रम समाप्त कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो विनर्स हैं, अगर वो 30 सेकंड में कुछ कहना चाहते हो, जो सबसे पहले मैं शिवाजी को बुलाना चाहूंगा। शिवाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके द्वारा जिस प्रकार से ये कार्यक्रम रखा गया, स्पीच कॉम्पिटिशन रखा गया, ये काफी अप्रिशिएट वाला कदम है कि जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर आपने इसे रखा और हमें भी मौका मिला कि हम इसे ज्वाइन कर सकें, तो आपका धन्यवाद करते हैं सर। आप सभी का जिस प्रकार से इसका कार्यक्रम शुरू किया, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मैंने सुना और हर एक पार्टिसिपेंट ने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और हर एक पार्टिसिपेंट को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस प्रकार से उन्होंने रखा। और मैं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड ही रहता हूं हमेशा, और मैं आप सभी से भी कनेक्टेड ही रहूंगा। थैंक यू। Ramaya from Karnataka, I would like to hear you. Ramya, can you hear me? Pushpendu from Tripura. Yes, sir. Thanks a lot, sir. Would you like to say? I want to thank all the organizers. Okay. Yes, all the sirs and ma'ams and organizers, participants, audiences, all of them. They showed me great. कोमल from Punjab. कोमल, सर थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, बहुत मजा आया इसमें पार्टिसिपेट करके। कैसा लगा आपको इनाम जीत के? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। निधि फ्रॉम हापुड़। निधि, आप सुन रही हैं? यस सर। आपको कैसा लगा प्रोग्राम हमारा? अच्छा लगा सर, काफी अच्छा प्रोग्राम था, काफी अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में अपनी डॉक्टर सविता तनेजा मैम, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया बोलने का, उनका थैंक यू करना चाहूंगी। और उसके बाद सारी हमारी जूरी मेंबर्स का हम भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कोई भी अगर किसी को सॉरी सर, लाइन छूट गया था इसलिए मैं कह नहीं पाया। पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं, आप जी पुष्पेंद्र, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे सर सोमनाथ सर थे, वो वही मैंने दिया था ये लिंक कि आपके बारे में भी बताया था सर ने। अच्छा। जो आप यहाँ पे है, तो इस आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोगों ने कोई पार्शियलिटी की है? नहीं सर। आपको अच्छा लगा हमारे जजमेंट, हमारे जजेस का? यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, मैं ये आप सभी अच्छे हैं, आप सभी। चलिए, थैंक यू सो मच। रणदीप कौर, मोस्ट वेलकम सर। रणदीप कौर, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस। अदिति सिंह, थैंक यू सो मच। हाँ, रणदीप जी सर, हमें बहुत हमें स्पीच का शुरू से ही काफी शौक रहता है, लेकिन अभी आजकल नहीं मिल पा रहा है, तो नेशनल लेवल पे मिला तो सोचा कि कंपटीशन में भाग लेके देखते हैं, पता कुछ अच्छा सीखने को मिले। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला। लेकिन अपने भाई को बोलिएगा कि नेक्स्ट टाइम डिस्टर्ब ना करें, हो सकता है आपकी रैंक और अच्छी हो जाती। यस सर। कोई नहीं। अदिति सिंह। यस सर।
आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, sir. So firstly, thanks to all the teachers and organizers जिन्होंने इतना अच्छा ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और हम सब बच्चों को एक मौका दिया कि हम इस लॉकडाउन के टाइम में अपने व्यूज इस टॉपिक पे रख सके। फर्स्टली तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था, बट एक बार हो गया तो उसके बाद लगा कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स और होते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है? अभी हमारे पास 3 मिनट और हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? यस सर। कौन? यस सर। मैं सलोनी जादौन। हाँ सलोनी प्लीज। सर इस कंपटीशन में मैंने कोई प्राइज तो नहीं जीता, लेकिन मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन आप लोगों के सामने अपनी स्पीच रखने की। एंड थैंक यू टू माय एचओडी डॉक्टर सुगंधा सिंह, जिनने मुझे ये चांस दिया कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। अच्छा, सुगंधा मैडम ने आपको भेजा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरे को प्रणाम कहिएगा। सलोनी मैं कुछ कहना जी सर। हेलो जी सर। सलोनी, मैं डॉक्टर अमित वैश, जूरी मेंबर, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप बहुत टफ फाइट में थी, आपने बहुत अच्छा बोला था बेटा, और आगे और इस पर मेहनत करिए, और मैं श्योर हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगी फ्यूचर में। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू सर। मुझे भी स्पीच देके बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है कि मैंने कोई प्राइज नहीं जीता, बस मुझे पार्टिसिपेट करना था और यही मेरे लिए काफी है। अभी आगे बेटा, this is the spirit. You will definitely win a prize in future. ओके मैम, अगर फ्यूचर में अगर कोई कंपटीशन होता है तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। जरूर, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ये हम लोगों की शुरुआत है, और ये हमारी सोसाइटी की शुरुआत है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी आगे ऐसी बहुत सी कॉम्पिटिशन्स होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, और आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू विन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। और कोई मैंने किसी तो को कुछ सोचा भी कहना नहीं हो? था सर, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया था। कौन बोल रहा है? पुष्पेंद्र। यस सर। अब ये तो हमारे जजेस का डिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने जैसा उनको। डॉक्टर सविता तनेजा जो हापुड़ से जुड़ी हैं, मैडम बीएड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। आपके कैंडिडेट ने तो कुछ जीता भी है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ सर, निधि, ये बायो की सर टॉपर लड़की है हमारे कॉलेज की। एमएससी किया हुआ है इसने बॉटनी से। लेकिन आपकी स्टूडेंट ख्याल से नेहा हापुड़ से थी, वो भी बहुत अच्छा बोल रही थी। हाँ सर, वो थोड़ा सा उसकी तबीयत ऐसी है, शायद वो प्रेग्नेंट है, और इस टाइम तक वो आते आते शायद थक गई थी। मैं आपको बता देना चाहिए था कि उससे पहले ले लेते आप उसको स्टार्टिंग में। खैर, बच्चे सारे अच्छे बोले सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे आप प्रोग्राम कराते रहें और मुझे भी बताते रहें, तो मैं अपने बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराती रहूंगी। थैंक यू सर। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ऐश्वर्य, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बेटा। ऐश्वर्य, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।